Hello students, welcome to Affairs Cloud. My name is Vikas. So friends, we have an application by the name Careers Cloud which you can go and download through the Play Store. And once you have downloaded, you can log in with your Gmail ID. And why I am suggesting you this application, because this is the one-stop solution for all the current affairs. This is the best of the best application and the platform where you can enhance your learning through help. Here you will be provided with multiple courses. Here you will be provided with multiple options of quizzes, and even you will be provided current affairs on daily basis. PDFs and quizzes will be provided to you on daily basis, both in Hindi as well as English. Here you will be provided current affairs with weekly basis and monthly basis also. Here remember, once you have done watching our video, then you can log in through this application, take out the PDF, read that PDF and go through the quizzes. That will enhance your preparation. Same you have to do for weekly and same you have to do for the monthly also. In monthly you will be provided with the top 100 important questions PDF and video also, that will enhance your learning, and it will be a very beneficial and important video for the revision perspective. And not just this friends, apart from this we also provide you banking and economic questions. We provide you state current affairs such as of Uttarakhand, UP, Tripura, Telangana and many more. Not just this, apart from this we also provide you topic wise current affairs, and the topics that we are providing you are really important. These topics are such as national affairs, international affairs, important days, sports, defense, science and technology, apps and web portals, obituary. These are the important topics that are being asked in various exams across India. So these are the topics that are must and should be covered and will be beneficial for the preparation of the students. हेलो एवरीवन, तो आज की वीडियो में इंपॉर्टेंट डेज डिस्कस करेंगे अक्टूबर मंथ के. काफ़ी अच्छा सेशन रहेगा, एंड तक बने रहिएगा. चलिए स्टार्ट करें. व्हेन वाज द यूएन इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द ग्लोब विद द थीम ट्रांसलेशन अनवेल्स द मैनी फेसेस ऑफ ह्यूमैनिटी. तो कब ऑब्जर्व करते हैं हम? ये 30 सितंबर को ये डे ऑब्जर्व किया जाता है, एंड पहली बार 2017 में इसको ऑब्जर्व किया गया था. नेक्स्ट, द रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी ऑब्जर्व 197th गनर्स डे. तो रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी के द्वारा 197th गनर्स डे ऑब्जर्व किया गया. कब ऑब्जर्व किया गया? 28 सितंबर को ये ऑब्जर्व किया गया. कौन सा था? 197th गनर्स डे. नेक्स्ट, when was the UN International Day of Older Pensions 2023 observed across the globe with the theme याद रखेंगे, fulfilling the promises of the Universal Declaration of Human Rights for the older persons across generation. जो older persons होते हैं, राइट, जो बड़े लोग होते हैं 60 और 65 प्लस, उन्होंने जो हमारी कम्युनिटी को, हमारी सोसाइटी को ग्रो करने में अपने योगदान दिया है, उसको ऑनर करने के लिए हम UN इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन्स ऑब्जर्व करते हैं. और कब ऑब्जर्व किया जाता है ये डे? ये हम ऑब्जर्व करते हैं 1 अक्टूबर को, राइट. नेक्स्ट याद एक चीज़ और, पहली बार ये कब ऑब्जर्व किया गया था? 1991 में पहली बार ऑब्जर्व किया गया था, और 2023 में इसका 33rd एडिशन अभी हमने ऑब्जर्व किया. नेक्स्ट, व्हाट वाज द थीम ऑफ द इंटरनेशनल कॉफ़ी डे दैट वाज ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द ग्लोब ऑन 1 अक्टूबर. तो इंटरनेशनल कॉफ़ी डे की थीम क्या रहेगी, जो कि हम 1 अक्टूबर को ऑब्जर्व किया? थीम रहेगी प्रमोटिंग द राइट टू अ सेफ एंड हेल्दी वर्किंग एनवायरनमेंट इन द कॉफ़ी सप्लाई चेन. तो ये थीम रहेगी आपकी इंटरनेशनल कॉफ़ी डे की, दैट वाज ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द ग्लोब ऑन 1 अक्टूबर. करेक्ट, मार्क करके चलेंगे. इसी के साथ साथ याद रखेंगे, यूनाइटेड नेशन के ILO ने एंड इन दोनों के द्वारा मिलकर अभी एक कैंपेन भी लॉन्च किया गया था, #CoffeePeople. नेक्स्ट, व्हेन वाज वर्ल्ड वेजिटेरियन डे ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द ग्लोब. तो वर्ल्ड वेजिटेरियन डे कब ऑब्जर्व किया जाता है अक्रॉस द ग्लोब? हम ऑब्जर्व करते हैं 1 अक्टूबर को वर्ल्ड वेजिटेरियन डे, एंड ये ऑब्जर्व किया जाता है ताकि जो वेजिटेरियन लाइफ है उसको लाइफस्टाइल को प्रमोट किया जा सके. जो लोग प्लांट बेस्ड डाइट लेते हैं उनको वेजिटेरियंस कहते हैं. एंड एक टर्म होता है वीगन. वीगन कौन होते हैं? जो आपके एनिमल से रिलेटेड कोई भी प्रोडक्ट हो वो नहीं खाता. मीट तो छोड़ दो, चिकन तो छोड़ दो, आपका जो दूध होता है, कॉफ़ी मिल्क होता है, जो चीज़ होता है, पनीर होता है, वो भी नहीं खाते, राइट, वेगन. तो और वर्ल्ड वेगन डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? 1 नवंबर को ऑब्जर्व करते हैं वर्ल्ड वेगन डे, और याद रखेंगे 1 अक्टूबर को ऑब्जर्व करते हैं वर्ल्ड वेजिटेरियन डे. नेक्स्ट, व्हेन वाज UN वर्ल्ड हैबिटेट डे ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द ग्लोब विद द थीम रेजिलिएंट अर्बन इकोनॉमीज, सिटीज एज द ड्राइवर्स ऑफ ग्रोथ एंड रिकवरी. तो UN वर्ल्ड हैबिटेट डे कब ऑब्जर्व किया गया अक्रॉस द ग्लोब? 2 अक्टूबर को हमने ऑब्जर्व किया वर्ल्ड हैबिटेट डे अक्रॉस द ग्लोब, एंड ये ऑब्जर्व किया जाता है जनरली ऑन द फर्स्ट मंडे
ऑफ द अक्टूबर मंथ, राइट। ऑन द फर्स्ट मंडे ऑफ द अक्टूबर मंथ हम ऑब्जर्व करते हैं वर्ल्ड हैबिटेट डे। थीम क्या रहेगी? रेजिलियंट अर्बन इकोनॉमीज, सिटीज एज द ड्राइवर्स ऑफ ग्रोथ एंड रिकवरी। ठीक है, मार्क करके चलेंगे इसको। चलिए, और एक चीज़ और, 2 अक्टूबर को क्या होता है? गांधी जयंती हम ऑब्जर्व करते हैं, महात्मा गांधी का बर्थडे होता है, और इसी दिन हम इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस भी ऑब्जर्व करते हैं। और इस साल 2023 में हमने 17वां एडिशन ऑब्जर्व किया इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस का, राइट। महात्मा गांधी की बर्थ एनिवर्सरी थी ये 2 अक्टूबर, और इस बार 153rd, आई करेक्ट, 154th बर्थ एनिवर्सरी हमने ऑब्जर्व करी महात्मा गांधी की, एंड 17वां इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस कब ऑब्जर्व किया गया था? पहली बार इंटरनेशनल डे ऑफ द नॉन वायलेंस 2007 में पहली बार ऑब्जर्व किया गया। एंड एक बहुत फेमस सेइंग है इनकी, से नो टू वायलेंस, गांधी जी की। नेक्स्ट, व्हाट इज द थीम ऑफ द 69th वाइल्ड लाइफ वीक 2023 बीइंग ऑब्जर्व्ड अक्रॉस इंडिया फ्रॉम 2nd to 8th अक्टूबर 2023? तो 69th एडिशन ऑफ वाइल्ड लाइफ वीक 2023 कब ऑब्जर्व किया गया अक्रॉस इंडिया फ्रॉम 2nd to 8th अक्टूबर? तो हमने ऑब्जर्व किया पार्टनरशिप्स फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। ये आपकी थीम रहेगी वाइल्ड लाइफ वीक की, जो हम ऑब्जर्व किए जाते हैं 2nd से 8th अक्टूबर। 69th एडिशन था, राइट। और याद रखेंगे ये 69th एडिशन था वाइल्ड लाइफ वीक का। अगर मैं पूछूं पहली बार वाइल्ड लाइफ वीक कब ऑब्जर्व किया गया? 1957 में पहली बार ऑब्जर्व किया गया। एंड अगर पूछा जाए यूएन वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ वीक ये कब ऑब्जर्व किया जाता है? वाइल्ड लाइफ डे, सॉरी, यूएन वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? तो ये ऑब्जर्व किया जाता है 3 मार्च को। नेक्स्ट, When was World Animal Day observed across the globe with the theme Great or Small, Love Them All? एक चीज़ और पिछले क्वेश्चंस में, जो ये वाइल्ड लाइफ वीक है ना, ये इंडिया ऑब्जर्व किया गया था 69th एडिशन, जो कि 2 से 8 अक्टूबर था। और ये यूएन वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे ये 3 मार्च को। कंफ्यूज मत होना, ये ग्लोबली, ये इन इंडिया। वापस आते हैं, When was World Animal Day observed across the globe with the theme Great or Small, Love Them All? ये आपकी थीम रहेगी वर्ल्ड एनिमल डे की। कब ऑब्जर्व करते हैं वर्ल्ड एनिमल डे? 4 अक्टूबर को हम ऑब्जर्व करते हैं वर्ल्ड एनिमल डे। थीम रहेगी ग्रेट और स्मॉल, लव देम ऑल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, व्हाट इज द थीम ऑफ द यूएन वर्ल्ड स्पेस वीक ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द ग्लोब फ्रॉम 4 to 10th अक्टूबर? तो वर्ल्ड स्पेस वीक की हम बात कर रहे हैं, 4 से लेकर 10 अक्टूबर तक हम ऑब्जर्व करेंगे यूएन वर्ल्ड स्पेस वीक को, राइट। थीम क्या रहेगी इसकी? स्पेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ये आपकी थीम रहेगी वर्ल्ड स्पेस वीक की। 4 से 10 अक्टूबर तक ऑब्जर्व करते हैं, राइट। और इसी में पहली बार हमने कब ऑब्जर्व किया था इस वीक को? सन 2000 में इसको पहली बार ऑब्जर्व किया गया। नेक्स्ट, व्हेन वाज द वर्ल्ड टीचर्स डे? देखो, एक होता है नेशनल टीचर्स डे, जो हम टीचर्स डे इंडिया में ऑब्जर्व करते हैं। कब ऑब्जर्व करते हैं? 5 सितंबर को। एक हो जाता है वर्ल्ड टीचर्स डे। तो वर्ल्ड टीचर्स डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? 1 महीने बाद 5 अक्टूबर को हम ऑब्जर्व करते हैं वर्ल्ड टीचर्स डे। ठीक है, वर्ल्ड टीचर्स डे। थीम क्या रहेगी वर्ल्ड टीचर्स डे की? थीम रहेगी द टीचर्स वी नीड फॉर द एजुकेशन वी वांट। आई रिपीट, थीम क्या रहेगी? द टीचर वी नीड फॉर द एजुकेशन वी वांट। एंड यूनेस्को के द्वारा ये डे वर्ल्ड टीचर्स डे ऑब्जर्व किया जाता है। पहली बार 1994 में ऑब्जर्व किया गया था 5 अक्टूबर को वर्ल्ड टीचर्स डे। नेक्स्ट, व्हाट वाज द थीम ऑफ द वर्ल्ड सेरिब्रल पॉल्सी डे ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द ग्लोब ऑन 6th अक्टूबर? तो 6 अक्टूबर को वर्ल्ड सेरिब्रल पॉल्सी डे ऑब्जर्व किया गया अक्रॉस द ग्लोब। उसकी थीम क्या रहेगी? टुगेदर स्ट्रॉन्गर। टुगेदर स्ट्रॉन्गर ये थीम रहेगी आपकी वर्ल्ड सेरिब्रल पॉल्सी डे की, ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द ग्लोब ऑन 6th अक्टूबर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, व्हाट वाज द थीम ऑफ द इंडियन एयरफोर्स डे ऑब्जर्व्ड अक्रॉस इंडिया ऑन 8th अक्टूबर? तो सबसे पहली चीज, इंडियन एयरफोर्स डे कब ऑब्जर्व करते हैं हम 8 अक्टूबर को ऑब्जर्व करते हैं, राइट। इसकी थीम पूछी जा रही है कि 8 अक्टूबर को जो 2023 में इंडियन एयरफोर्स डे ऑब्जर्व किया गया था, इसकी थीम क्या रहेगी? तो थीम है एयर पावर बियॉन्ड बाउंड्रीज, राइट। ये आपकी थीम रहेगी। सबसे पहली चीज तो ये याद रखेंगे। फिर अगर पूछा जाए आपका ये इंडियन एयरफोर्स डे, जिसको भारतीय वायुसेना भी बोलते हैं, ये इस्टेब्लिश कब की गई थी, फाउंड कब की गई थी? तो 8 अक्टूबर 1932 में इसको फाउंड किया गया था। नेक्स्ट, व्हेन वाज वर्ल्ड पोस्ट डे ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द ग्लोब बाय यूएन विद द थीम टुगेदर फॉर ट्रस्ट कोलैबोरेटिंग फॉर अ सेफ एंड कनेक्टेड फ्यूचर? तो व्हेन वाज द वर्ल्ड पोस्ट डे ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द ग्लोब? तो कब ऑब्जर्व किया गया था वर्ल्ड पोस्ट डे? 9 अक्टूबर को हमने ऑब्जर्व किया। और इसकी थीम भी यहाँ पे याद रखेंगे, थीम रहेगी टुगेदर फॉर ट्रस्ट कोलैबोरेटिंग फॉर अ सेफ एंड कनेक्टेड फ्यूचर। पहली बार वर्ल्ड पोस्ट डे 1969 में ऑब्जर्व किया गया था इन जापान। ठीक है, नेक्स्ट, व्हेन वाज वर्ल्ड डिसलेक्सिया डे ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द ग्लोब विद द थीम यूनिकली यू? तो वर्ल्ड डिसलेक्सिया डे क्या होता है? डिसलेक्सिया क्या होता है? बेसिकली ये एक रीडिंग डिसेबिलिटी होती है, रीडिंग
डिसेबिलिटी होती है, राइट। तो वर्ल्ड डिसलेक्सिया डे कब ऑब्जर्व किया जाता है अक्रॉस द ग्लोब? तो हम 8 अक्टूबर को ऑब्जर्व करते हैं वर्ल्ड डिसलेक्सिया डे, एंड इसकी थीम रहेगी यूनिकली यू। नेक्स्ट, what was the theme of the National Postal Week that was observed across India from 9 to 13th of October? तो थीम क्या रहेगी नेशनल पोस्टल वीक की जो ऑब्जर्व किया गया अक्रॉस इंडिया फ्रॉम 9 to 13th of October? तो थीम रहेगी टुगेदर फॉर ट्रस्ट कोलैबोरेटिंग फॉर अ सेफ एंड कनेक्टेड फ्यूचर। ये आपकी थीम रहेगी नेशनल पोस्टल वीक की जो ऑब्जर्व किया जाता है अक्रॉस इंडिया फ्रॉम 9 to 13th of October। करेक्ट, मार्क करेंगे। इस वीक को, नेशनल पोस्टल वीक को डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के द्वारा ऑब्जर्व किया जाता है, राइट। एंड वन मोर थिंग याद रखेंगे, 9 अक्टूबर को हम ऑब्जर्व करते हैं वर्ल्ड पोस्ट डे। 9 अक्टूबर को हम ऑब्जर्व करते हैं वर्ल्ड पोस्ट डे, और 9 से 13 अक्टूबर तक नेशनल पोस्टल वीक। नेक्स्ट, द डैश एडिशन ऑफ द वर्ल्ड डे अगेंस्ट डेथ पेनल्टी वॉज ऑब्जर्व अक्रॉस द ग्लोब ऑन 10th of October 2023। तो 21st एडिशन ऑफ द वर्ल्ड डे अगेंस्ट डेथ पेनल्टी ऑब्जर्व किया गया अक्रॉस द ग्लोब ऑन 10th of October to raise awareness about the inhuman and cruel practices of capital punishment, right, and death penalty से खत्म कर, डेथ पेनल्टीज को बेसिकली खत्म करने के लिए फ्रॉम द जस्टिस सिस्टम ये डे ऑब्जर्व किया जाता है, और ये 21वां एडिशन है वर्ल्ड डे अगेंस्ट डेथ पेनल्टी का। नेक्स्ट, व्हेन वाज द वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द ग्लोब? तो 10 अक्टूबर को हम ऑब्जर्व करते हैं वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे अक्रॉस द ग्लोब टू रेज अवेयरनेस ऑफ मेंटल हेल्थ एंड इश्यूज अराउंड द वर्ल्ड। करेक्ट, वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे ऑब्जर्व किया जाता है बाय WHO एंड वर्ल्ड फेडरेशन फॉर मेंटल हेल्थ के द्वारा मिलकर, एंड यहाँ पर एक ग्रीन रिबन आपका सिंबल रहता है, ऑफ दिस इंटरनेशनल सिंबल रहता है फॉर द मेंटल हेल्थ अवेयरनेस। ठीक, थीम याद रखेंगे, इसकी थीम क्या रहेगी? मेंटल हेल्थ इज अ यूनिवर्सल ह्यूमन राइट। तो थीम क्या रहेगी वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे की? मेंटल हेल्थ इज अ यूनिवर्सल ह्यूमन राइट। नेक्स्ट, व्हाट वाज द थीम ऑफ UN इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द ग्लोब ऑन 11th of October? तो याद रखेंगे थीम रहेगी यहाँ पर इन्वेस्ट इन गर्ल्स राइट्स आर लीडरशिप आर वेलबिंग। आई रिपीट, फिर से अच्छे से बताता हूँ, इन्वेस्ट इन गर्ल्स राइट आर लीडरशिप आर वेलबिंग, ये थीम रहेगी UN इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल चाइल्ड की, दैट वाज ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द ग्लोब ऑन 11th of October राइट। पहली बार 11 अक्टूबर 2012 में इसको ऑब्जर्व किया गया था। नेक्स्ट, फर्स्ट नेशनल करंट गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस डे ऑब्जर्व किया गया अक्रॉस द ग्लोब ऑन डैश विद द थीम CGMP ट्रांसफॉर्मिंग हेल्थ केयर। तो पहली बार कब ऑब्जर्व किया गया? ये हमने ऑब्जर्व किया 10 अक्टूबर को राइट। इसकी थीम क्या रहेगी? CGMP ट्रांसफॉर्मिंग हेल्थ केयर, करेक्ट। और 10 अक्टूबर 2023 इट मार्क्स द फर्स्ट एवर कह लें या फिर इनॉग्रल एडिशन ऑफ द नेशनल करंट गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस डे। नेक्स्ट, when was World Arthritis Day observed across the globe with the theme Living with an RMD at all the stages of life? तो 12 अक्टूबर को हम ऑब्जर्व करते हैं वर्ल्ड अर्थराइटिस डे राइट, और थीम रहेगी लिविंग विद एन RMD एट ऑल द स्टेजेस ऑफ लाइफ। इस साल 2023 में इसका 18वां एडिशन हमने ऑब्जर्व किया। पहली बार 1996 में ऑब्जर्व किया गया था वर्ल्ड अर्थराइटिस डे, एंड 12 अक्टूबर 1996 को पहली बार ऑब्जर्व किया गया था। नेक्स्ट, व्हाट वाज द थीम ऑफ द वर्ल्ड साइट डे ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द ग्लोब ऑन 12th of October? तो थीम रहेगी लव योर आइज एट वर्क। ये थीम रहेगी आपकी वर्ल्ड साइट्स डे की ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द ग्लोब ऑन 12th of October राइट। वर्ल्ड आई डे बोलो, वर्ल्ड साइट डे बोलो, वर्ल्ड विजन डे बोलो, ये सब ऑब्जर्व किए जाते हैं ऑन 12th of October इस साल, सिर्फ 2023 में। जनरली कब ऑब्जर्व किए जाते हैं? ऑन सेकेंड थर्सडे ऑफ अक्टूबर। सेकेंड थर्सडे ऑफ अक्टूबर को हम ऑब्जर्व करते हैं वर्ल्ड साइट डे, वर्ल्ड आई डे या फिर वर्ल्ड विजन डे, और थीम क्या रहेगी इसकी? लव योर आइज एट वर्क। नेक्स्ट, व्हेन वाज द UN इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द ग्लोब विद द थीम फाइटिंग इनइक्वालिटी फॉर अ रेजिलियंट फ्यूचर? ये थीम रहेगी क्या? फाइटिंग इनइक्वालिटी फॉर अ रेजिलियंट फ्यूचर, ये आपकी थीम रहेगी UN इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। कब ऑब्जर्व किया जाता है? 13 अक्टूबर को ये डे हम ऑब्जर्व करते हैं। थीम है फाइटिंग इनइक्वालिटी फॉर अ रेजिलियंट फ्यूचर। पहली बार कब ऑब्जर्व किया गया था? 1990 में इसको पहली बार ऑब्जर्व किया गया। नेक्स्ट, व्हाट वाज द थीम ऑफ 27th वर्ल्ड एग डे दैट वाज ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द ग्लोब ऑन 13th of October? तो 27वां एडिशन ऑफ द वर्ल्ड एग डे कब ऑब्जर्व किया गया था? 13 अक्टूबर को। पूछा जा रहा है थीम क्या रहेगी? थीम रहेगी एग्स फॉर अ हेल्दी फ्यूचर। थीम रहेगी एग्स फॉर अ हेल्दी फ्यूचर राइट। और पहली बार वर्ल्ड एग डे 1996 में ऑब्जर्व किया गया था। नेक्स्ट,
यूएन बैक्ड बाई एनुअल कैंपेन वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे ऑब्जर्व किया गया अक्रॉस द ग्लोब ऑन 14th of October. I repeat, UN backed biannual campaign World Migratory Bird Day ऑब्जर्व किया गया across the globe on 14th of October. थीम या क्या रहेगा इसका स्लोगन कैंपेन का, वो है वाटर सस्टेनिंग बर्ड लाइफ. ठीक है, चलिए, और याद रखेंगे 2 बार ऑब्जर्व किया जाता है वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे. ये आपका एक बार ऑब्जर्व किया जाता है 13 मई को और दूसरा 14 अक्टूबर को. नेक्स्ट, व्हेन वाज द वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स डे या इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स डे ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द ग्लोब. तो 14 अक्टूबर को हम ऑब्जर्व करते हैं वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स डे या फिर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स डे. करेक्ट. थीम रहेगी शेयर्ड विजन फॉर अ बेटर वर्ल्ड, स्टैंडर्ड्स फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल. राइट, मार्क करके चलेंगे. एंड इस डे को ऑब्जर्व किया जाता है इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन ISO, इन दोनों के द्वारा मिलकर, प्लस ITU क्या है, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन. Next, when was UN International Day of Rural Women 2023 observed across the globe with the theme Rural Women, Women with Rights. तो United Nations International Day of Rural Women 2023 observed across the globe with the theme of Rural Women, Women with Rights. कब ऑब्जर्व करते हैं हम इसको? 15 अक्टूबर को ये डे ऑब्जर्व किया जाता है. राइट, और पहली बार इंटरनेशनल डे ऑफ रूरल वीमेन कब ऑब्जर्व किया गया था? 2008 में. Next, what was the theme of 16th Global Hand Washing Day that was observed across the globe on 15th of October 2023? तो पहली बार कब ऑब्जर्व किया गया पहली बार कब ऑब्जर्व किया गया? 2008 में, 15 अक्टूबर 2008 को. और 2023 में जो ये 16th ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे ऑब्जर्व किया गया, इसकी थीम क्या रहेगी? क्लीन हैंड्स आर विद इन रीच. तो थीम बनती है आपकी क्लीन हैंड्स विद इन आर रीच. ऑप्शन 3 ठीक रहेगा. पहली बार 2008 में ऑब्जर्व किया गया. नेक्स्ट, When was World Students Day observed to commemorate the birth anniversary of 11th President of India, जो कि हैं मिसल मैन ऑफ इंडिया, जिनको मिसल मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं, वो है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम. तो 15 अक्टूबर को हमने ऑब्जर्व किया वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे. ये 11th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जिनको हम एक और नाम से जानते हैं, वो क्या है? मिसल मैन ऑफ इंडिया. उनकी मेमोरी में इस डे को ऑब्जर्व किया जाता है. 15 अक्टूबर को 92nd बर्थ एनिवर्सरी थी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की. एंड 2002 से लेके 2007 तक ये इस पोजीशन में रहे थे एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. राइट, जो कि थे 11th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. इनको पद्मा भूषण से सम्मानित किया गया था 1981 में फॉर सिविल सर्विसेज. पद्मा विभूषण से इनको सम्मानित किया गया था 1990 में फॉर साइंस एंड इंजीनियरिंग. एंड 1997 में इनको सम्मानित किया गया था भारत रत्न से फॉर साइंस एंड engineering. Next, what was the theme of UN World Food Day that was observed across the globe on 16th of October? तो 16 अक्टूबर को वर्ल्ड फूड डे की जो ऑब्जर्व किया गया, उसकी थीम क्या रहेगी? थीम है वाटर इज लाइफ, वाटर इज फूड, लीव नो वन बिहाइंड. आई रिपीट, वाटर इज लाइफ, वाटर इज फूड, लीव नो वन बिहाइंड. थीम रहेगी वर्ल्ड फूड डे की, जो 16 अक्टूबर को ऑब्जर्व किया गया था. UNFAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसको ऑब्जर्व किया जाता है. हेडक्वार्टर कहाँ पर है FAO का? वो बताओ. FAO का जो हेडक्वार्टर रहेगा, ये आपका होमवर्क है, ज़रा मुझे कमेंट करके बताओ कहाँ पर है इसका हेडक्वार्टर. नेक्स्ट, व्हेन वाज UN इंटरनेशनल डे फॉर द एरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द ग्लोब. तो कब ऑब्जर्व करते हैं UN इंटरनेशनल डे फॉर द एरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी अक्रॉस द ग्लोब? तो ऑब्जर्व किया जाता है 17 अक्टूबर को. राइट, थीम रहेगी डिसेंट वर्क एंड सोशल प्रोटेक्शन. ये आपकी थीम रहेगी इंटरनेशनल डे फॉर द एरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी की. एंड पहली बार ये वर्ल्ड डे फॉर ओवरकमिंग एक्सट्रीम पॉवर्टी 17 अक्टूबर 1987 में ऑब्जर्व किया गया था. राइट, और यहीं पे अगर हम बात करें, ये तो हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड डे फॉर द ओवरकमिंग एक्सट्रीम पॉवर्टी, लेकिन अगर बात करें इंटरनेशनल डे फॉर द एरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी, ये 1993 में पहली बार ऑब्जर्व किया गया, 6 साल बाद. मूविंग ऑन. नेक्स्ट, व्हेन वाज वर्ल्ड ट्रॉमा डे ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द ग्लोब विद द थीम एम्ब्रेसिंग रेजिलियंस ओवरकमिंग ट्रॉमाज impact. I repeat, when was World Trauma Day observed across the globe with the theme Embracing Resilience Overcoming Trauma's Impact? ये आपका कब ऑब्जर्व किया जाता है? 17 अक्टूबर को ये हम ऑब्जर्व करते हैं. राइट, और ये 13th एडिशन है इस थीम इस वर्ल्ड ट्रॉमा डे का. और थीम याद रखेंगे क्या है? एम्ब्रेसिंग रेजिलियंस ओवरकमिंग ट्रॉमाज इम्पैक्ट. नेक्स्ट, द डैश एडिशन ऑफ द रेजिंग डे ऑफ नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, ये ऑब्जर्व किया गया 16 अक्टूबर को. तो कौन सा एडिशन था? 39th एडिशन है रेजिंग डे का, जो ऑब्जर्व किया गया. और नेशनल 9th एडिशन ऑफ द रेजिंग डे ऑफ द नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, जो ऑब्जर्व किया गया कब?
16 अक्टूबर को, राइट। 39th एडिशन था, याद रख के चलेंगे। और नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, ये नेशनल सिक्योरिटी गार्ड एक्ट के अंडर इन 1986 इसको इस्टेब्लिश करा गया था। मूविंग ऑन, व्हेन वाज नेशनल सॉलिडेरिटी डे ऑब्जर्व अक्रॉस इंडिया। तो नेशनल सॉलिडेरिटी डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? 20 अक्टूबर को हम ऑब्जर्व करते हैं नेशनल सॉलिडेरिटी डे। एंड ये 61th एनिवर्सरी रहेगी इस नेशनल सॉलिडेरिटी डे की, बिकॉज 1962 में जो इंडो चाइना वॉर हुई थी उसमें जो कैजुअलिटीज हुई थी उनको ऑनर करने के लिए, उन सोल्जर्स को उन ब्रेव सोल्जर्स को यहाँ पे ऑनर करने के लिए डे ऑब्जर्व किया जाता है। नेक्स्ट, व्हेन वाज वर्ल्ड ऑस्ट्रोपेरेसिस डे ऑब्जर्व। तो कब ऑब्जर्व करते हैं वर्ल्ड ऑस्ट्रोपेरेसिस डे? 20 अक्टूबर को हम ऑब्जर्व करते हैं वर्ल्ड ऑस्ट्रोपेरेसिस डे, और थीम रहेगी बिल्ड बेटर बोन्स। ये आपकी थीम रहेगी वर्ल्ड ऑस्ट्रोपेरेसिस डे की। नेक्स्ट, द डैश इंटरनेशनल शेफ्स डे ऑब्जर्व अक्रॉस द ग्लोब ऑन 20th of अक्टूबर। तो याद रखेंगे 20वां एडिशन ऑफ द इंटरनेशनल शेफ्स डे को ऑब्जर्व किया जाएगा अक्रॉस द ग्लोब ऑन 20th of अक्टूबर, राइट। एंड मार्क करके चलेंगे इसको। नेक्स्ट, व्हेन वाज पुलिस कमेमोरेशन डे या फिर पुलिस मार्टर्स डे कब ऑब्जर्व किया जाता है अक्रॉस द ग्लोब? 21 अक्टूबर को हम ऑब्जर्व करते हैं पुलिस कमेमोरेशन डे या पुलिस मार्टर्स डे। ये उन लोगों के, उन सोल्जर्स के लिए, उन पुलिस पर्सनस के लिए ऑब्जर्व किया जाता है जिनकी ड्यूटी के दौरान मृत्यु हो जाती है, करेक्ट। नेक्स्ट इज व्हेन वाज द ग्लोबल आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स डे। आयोडीन की डेफिशिएंसी से क्या होता है? गॉइटर होता है। आयोडीन मिलता कहाँ है? NaCl जो कि सॉल्ट में होता है। तो ग्लोबल आयोडीन डेफिशिएंसी प्रिवेंशन डे कब ऑब्जर्व किया जाता है अक्रॉस द ग्लोब? तो 21 अक्टूबर को हम ऑब्जर्व करते हैं ग्लोबल आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर प्रिवेंशन डे, राइट, 21 अक्टूबर को। एंड जो आयोडीन की असेंशियल नीड होती है हमारी बॉडी को ताकि गॉइटर ना हो सके, उसकी अवेयरनेस क्रिएट कराने के लिए ये डे ऑब्जर्व किया जाता है। नेक्स्ट, व्हेन वाज द इंटरनेशनल स्टैमरिंग अवेयरनेस डे ऑब्जर्व अक्रॉस द ग्लोब। तो इंटरनेशनल स्टैमरिंग अवेयरनेस डे कब ऑब्जर्व किया जाता है अक्रॉस द ग्लोब? हम 22 अक्टूबर को ऑब्जर्व करते हैं इंटरनेशनल स्टैमरिंग अवेयरनेस डे को, ठीक है। स्टैमरिंग क्या होता है? हकलाना बोलते हुए, राइट। एंड अबाउट 1% ऑफ द पॉपुलेशन ग्लोबली, जो कि आ जाते हैं अराउंड मिलियंस ऑफ पीपल, वो इस प्रॉब्लम से जूझते हैं, और पहली बार 22 अक्टूबर 1998 में ऑब्जर्व किया गया था। नेक्स्ट, द डैश इंटरनेशनल लेड पॉइजनिंग प्रिवेंशन वीक वाज ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द ग्लोब 22 से 28 अक्टूबर तक। तो कौन सा एडिशन? तो 11th एडिशन ऑफ द इंटरनेशनल लेड पॉइजनिंग प्रिवेंशन वीक ऑब्जर्व किया जाता है अक्रॉस द ग्लोब ऑन 22 to 28 of अक्टूबर 2023, राइट। फोकस क्या रहेगा कैंपेन का? एंड चाइल्ड लेड पॉइजनिंग। चलिए, तो राइट ऑप्शन 11th, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, व्हेन वाज वर्ल्ड स्नो लेपर्ड डे ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द ग्लोब। तो वर्ल्ड स्नो लेपर्ड डे कब ऑब्जर्व किया जाता है अक्रॉस द ग्लोब? 23 अक्टूबर को हम ऑब्जर्व करते हैं वर्ल्ड स्नो लेपर्ड डे अक्रॉस द ग्लोब, राइट। मार्क करके चलेंगे। एंड जो स्नो लेपर्ड की जो कंजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन है उसको अवेयरनेस बढ़ाने के लिए ये डे ऑब्जर्व किया जाता है। पहली बार इस डे को 2014 में ऑब्जर्व किया गया। इसके अलावा अगर मैं बात करूं यूनाइटेड नेशन डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? तो 24 अक्टूबर को ऑब्जर्व किया गया। 24 को ही याद रखेंगे वर्ल्ड पोलियो डे ऑब्जर्व किया गया। 24 को ही याद रखेंगे वर्ल्ड डेवलपमेंट इंफॉर्मेशन डे ऑब्जर्व किया गया। फिर इसके अलावा अगर बात की जाए 24 को ही आपका 62nd एडिशन ऑफ द रेजिंग डे ऑफ ITBP ये ऑब्जर्व किया गया। फिर इसके अलावा 24 से लेके 30 अक्टूबर तक हमने ऑब्जर्व किया UN डिसआर्मेंट वीक अक्रॉस द ग्लोब। फिर ग्लोबल मीडिया एंड इंफॉर्मेशन लिटरेसी वीक ऑब्जर्व किया गया 24 से लेके 31 अक्टूबर तक, और ये 12वां एडिशन था ग्लोबल मीडिया एंड इंफॉर्मेशन लिटरेसी वीक का। देन 12th एडिशन ऑफ द इंटरनेशनल ड्वार्फिज्म अवेयरनेस डे कब ऑब्जर्व किया गया? आई रिपीट, 12वां एडिशन ऑफ द इंटरनेशनल ड्वार्फिज्म अवेयरनेस डे कब ऑब्जर्व किया गया अक्रॉस द ग्लोब? 25 अक्टूबर को ये डे ऑब्जर्व किया गया। नेक्स्ट, अगर इसके अलावा देखें और डे जैसे 77th एडिशन ऑफ इन्फेंट्री डे कब ऑब्जर्व किया गया? तो ये 27 अक्टूबर को हम ऑब्जर्व करते हैं। फिर इंटरनेशनल एनिमेशन डे, एनिमेशन क्या होता है? जो हम कार्टून्स वगैरह देखते हैं। तो इंटरनेशनल एनिमेशन डे कब ऑब्जर्व किया जाता है अक्रॉस द ग्लोब? 28 अक्टूबर को हमने ऑब्जर्व किया। फिर इसी के साथ साथ अगर पूछा जाए आपसे पहला इंटरनेशनल डे ऑफ केयर एंड सपोर्ट अक्रॉस द ग्लोब कब ऑब्जर्व किया गया? तो 29 अक्टूबर को हम ऑब्जर्व करते हैं फर्स्ट एवर इंटरनेशनल डे ऑफ केयर एंड सपोर्ट, राइट। तो दोस्तों ये थे हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स ऑफ द टॉपिक इंपॉर्टेंट डेज फॉर अक्टूबर मंथ। सेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना। एंड अब चलते हैं कुछ और रिवीजन करंट अफेयर्स पे जो कि आपके लर्निंग में काफ़ी हेल्प करेंगे।
When was UN International Day of Charity observed across the globe? So यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी कब ऑब्जर्व किया जाता है अक्रॉस द ग्लोब? तो 5 सितंबर को ये डे ऑब्जर्व किया जाता है अक्रॉस द ग्लोब। बेसिकली जो एनजीओज होते हैं, राइट, ये बेसिक क्या करते हैं, ये लोगों की हेल्प करते हैं, करेक्ट, जो कि नीड में होते हैं। इनके थ्रू आप या तो वॉलंटियर का काम कर लो या फिर आप यहाँ पे मॉनेटरी हेल्प प्रोवाइड करा दो अपनी, करेक्ट। तो इन चीज़ों को प्रमोट करने के लिए ये यूएन इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी ऑब्जर्व किया गया, करेक्ट। एंड बेसिकली मदर टेरेसा का जो वर्क था, उन्होंने जितना इसमें काम किया है, लोगों को हेल्प किया, राइट, उसको ध्यान में रखते हुए जो उनकी डेथ एनिवर्सरी थी, मदर टेरेसा की जो डेथ एनिवर्सरी थी, 5 सितंबर को उनकी डेथ हुई थी 1979 में, करेक्ट। तब से हम ये हर साल ऑब्जर्व कर रहे हैं, करेक्ट। मतलब बेसिकली नॉट 1979 से, बट 5 सितंबर को ही इसीलिए ऑब्जर्व किया जाता है क्योंकि डेथ एनिवर्सरी होती है मदर टेरेसा की, जिनका निधन कब हुआ था, 1979 में। तो इसी को ध्यान में रखते हुए 2013 से हमने हर साल ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी। नेक्स्ट, when was UN International Day of Clean Air for Blue Skies observed across the globe with the theme Together for Clean Air? तो कब ऑब्जर्व करते हैं यूएन इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काइज? तो ये ऑब्जर्व किया जाता है 7 सितंबर को, करेक्ट। 7 सितंबर को ये ऑब्जर्व किया जाता है एंड इस साल ये चौथा एडिशन था आपका इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काइज का। और थीम क्या रहेगी? टुगेदर फॉर क्लीन एयर, ये आपकी थीम रहेगी, इसको मार्क करेंगे। नेक्स्ट, When was International Literacy Day observed across the globe by UNESCO? यूनेस्को के द्वारा इंटरनेशनल लिटरेसी डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? तो 8 सितंबर को हम ऑब्जर्व करते हैं इंटरनेशनल लिटरेसी एंड इसका एम क्या है कि लोगों को एजुकेशन प्रोवाइड कराना एंड हमारी सोसाइटी को ज़्यादा लिटरेट बनाना, क्योंकि हम जानते हैं एजुकेशन हर व्यक्ति का राइट है एंड एजुकेटेड होंगे तो वो अपनी लाइफ को और बेटर कर सकते हैं बाय अर्निंग मनी, करेक्ट। तो 8 सितंबर को ये ऑब्जर्व किया जाता है। पहली बार कब ऑब्जर्व किया गया था? 1967 में पहली बार ये डे ऑब्जर्व किया गया था एंड इसकी थीम रहेगी प्रमोटिंग लिटरेसी फॉर अ वर्ल्ड इन ट्रांजिशन। नेक्स्ट, व्हेन वाज वर्ल्ड फिजिकल थेरेपी डे ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द ग्लोब? वर्ल्ड फिजिकल थेरेपी डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? 8 सितंबर को ये डे ऑब्जर्व किया जाता है अक्रॉस द ग्लोब, correct, and it is to raise awareness about the importance of physical therapy and the role it plays in improving the health, well-being and the quality of life of individuals across the globe। फिर यहीं पे इसकी थीम याद रखेंगे वर्ल्ड फिजिकल थेरेपी डे की, जो कि है अर्थराइटिस एंड द रोल ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट। आई रिपीट, अर्थराइटिस एंड द रोल ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट, ये आपकी थीम रहेगी वर्ल्ड फिजिकल थेरेपी डे की, करेक्ट। और पहली बार इस डे को कब ऑब्जर्व किया गया था? 1951 में इसको पहली बार ऑब्जर्व किया गया था। नेक्स्ट, व्हेन वाज हिमालयन दिवस, जो कि हिमालयन दिवस कहें या फिर हिमालयन डे कहें, ऑब्जर्व्ड अक्रॉस इंडिया। बेसिकली याद रखेंगे ये उत्तराखंड में ज़्यादा इसको ऑब्जर्व किया जाता है बिकॉज 2014 में हरीश रावत यहाँ के चीफ मिनिस्टर थे हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड के एंड इन्होंने 9 सितंबर को डिक्लेयर किया कि हर साल हम ऑब्जर्व करेंगे हिमालय दिवस। और पहला हिमालय दिवस कब ऑब्जर्व किया गया? 2015 में, करेक्ट। 2014 में इन्होंने डिक्लेयर किया था हरीश रावत जी ने और 2015 में इससे पहली बार हमने ऑब्जर्व किया हिमालय दिवस और जनरली उत्तराखंड में ये डे ऑब्जर्व किया जाता है। तो 9 सितंबर को हम ऑब्जर्व करते हैं हिमालय दिवस, राइट। नेक्स्ट, what was the theme of the World First Aid Day observed across the globe on 9th of September? तो थीम क्या रहेगी? थीम आपकी फर्स्ट एड इन द डिजिटल वर्ल्ड, ये आपकी थीम रहेगी वर्ल्ड फर्स्ट एड डे की, करेक्ट। इसके याद रखेंगे जो थीम का बेसिकली आज के टाइम पे जो डिजिटाइजेशन है, मोबाइल एप्लीकेशन है, ऑनलाइन वीडियोस है, इनको प्रमोट करने के लिए एंड फर्स्ट एड एजुकेशन के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए ये डे ऑब्जर्व किया जाता है। इससे रिलेटेड स्किल्स प्रोवाइड कराने की यहाँ पे बात की जाती है। नेक्स्ट, व्हेन वाज द यूएन इंटरनेशनल डे टू प्रोटेक्ट एजुकेशन फ्रॉम अटैक 2023 ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द ग्लोब? तो 9 सितंबर को हम ऑब्जर्व करते हैं यूएन इंटरनेशनल डे टू प्रोटेक्ट एजुकेशन फ्रॉम अटैक, करेक्ट, 9 सितंबर को। एंड याद रखेंगे ये चौथा इंटरनेशनल डे था जो हमने ऑब्जर्व किया। पहला कब ऑब्जर्व किया गया था? 2020 में। इसकी एक थीम भी याद रखेंगे, जस्टिस फॉर विक्टिम्स, जस्टिस फॉर विक्टिम्स। नेक्स्ट, व्हेन वाज वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द ग्लोब? तो 10 सितंबर को हम ऑब्जर्व करते हैं वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे, correct, and it is to create awareness that suicide can be prevented and to bring attention to the issue of suicide and reduce stigma around suicide। फिर एक और चीज़, हर 100 डेथ में से एक डेथ जो होती है वो आपकी सुसाइड की वजह से होती है। ये डाटा रिलीज किया था WHO ने,
ठीक है, एंड इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर सुसाइड प्रिवेंशन एंड WHO मिलके ही इस डे को ऑब्जर्व कराते हैं। एंड यहाँ पर इसकी थीम भी याद रखेंगे एक, जो है क्रिएटिंग होप थ्रू एक्शन। आई रिपीट, क्रिएटिंग होप थ्रू एक्शन, ये आपकी थीम रहेगी वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे की। नेक्स्ट, व्हेन वाज द नेशनल फॉरेस्ट मार्टर्स डे ऑब्जर्व्ड अक्रॉस इंडिया? तो नेशनल फॉरेस्ट मार्टर्स डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? 11 सितंबर को हम ये डे ऑब्जर्व करते हैं अक्रॉस इंडिया, टू ऑनर द पीपल जिन्होंने अपनी लाइफ गंवा दी टू प्रोटेक्ट द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इन इंडिया। करेक्ट, इसलिए ये हम 11 सितंबर को ऑब्जर्व करते हैं। That's all for the day, friends. I hope you enjoyed the session, and you can follow us on the YouTube channel, as well as apart from YouTube channel, you can go and follow us at Affairs Cloud Telegram channel. And if you have any queries related to the content or the of courses offered to you or the payment which you did on the application, you can contact us on the number provided, that is 7677333862. Apart from this, friends, you can follow us on the Facebook as well as on Instagram handle, that is affairscloud_official. In the end, friends, if you use a code that is Vikas10, you will be getting an additional extra 10% discount by using this code Vikas10. Also, if you have any problem regarding the course purchase, any problem regarding to our application, you can contact us on the mobile number, that is 9677333862. And if you want to mail us, you can also mail us on support@affairscloud.com, and I assure you that our representative from us will be contacting you soon and resolving your issue.